ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਿਓਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਿਓਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਵੀ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਿਓਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੀਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੋਨੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਭਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਭਰਜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਭ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਆਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਟਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੱਥ ਤੇ ਚੋਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਝਟਪਟ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਸਮੇਟੇ ਤੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਦਾ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਆ ਗਈ। ਭਾਬੀ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸਨੇ ਤੇਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ?
मैं अपने हंझू साफ करते हुए अपने पति नूं दस्सिया। किचन विच काम कर रही सी तां जले उत्ते पानी लगण दी वजह नाल दर्द हो लगा। मेरे पति ने कहा, ओए तू रहण दिंदी, बिट्टू कर दिंदी, लियाओ अपना हथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हथ अपने हथ विच लेंदे होए देखा अते फिर जिद करके मैनू हॉस्पिटल लै गए। डॉक्टर ने मेरे हथ ते पट्टी बन्नी अते नाल ही कुछ दवाई भी दिती। हॉस्पिटल तो घर आई तां घर ओहो जिहा दा ओहो जिहा ही पिया होया सी। नाश्ते दे बर्तन जो मैं अपनी ननाण अते दिओर नूं दित्ते सन उंज ही हाल विच टेबल उत्ते पए होए सन। मैनू बहुत गुस्सा आया पर मैं खामोश रही। उदों मेरे पति ने कुर्सी ते बैठते हुए पूछा, ये बर्तन हुण तक इत्थे रखे हुए ने? मैं कहा, हॉस्पिटल जाण तो पहला तुहाडी भैण अते भरा नूं नाश्ता दिता सी तां ओह बर्तन इंज ही छड्ड के चले गए। मैं हुणे उठा दिंदी हां अते बर्तन समेट के रसोई विच रखण लगी। तू रहण दे, डॉक्टर ने तैनूं काम करन तो मना किया है वरना जख्म नहीं भरेगा। मैनू कुर्सी ते बैठण दा इशारा किया तां मैं उन्हां कोल बैठ गई। मेरे पति ने अपनी भैण नूं आवाज़ दिती। मेरे पति अपनी भैण नूं बिट्टू कह के बुलाउंदे सन। उन्हां नूं शायद शुरू तो ही आदत सी, वरना उन्हां दी भैण किसे पासों भी बिट्टू नहीं लगदी सी। जे समय सिर विआह हो जांदा तां हुण तक तां 2-4 बच्चों की माँ हुंदी। हाँ दसो, मेरी ननाण मोबाइल चलाउंदी होई गुस्से के अंदाज विच पुछण लगी। मेरे पति ने मेरी ननाण नूं कहा, ये बर्तन समेट के किचन विच ले जाओ अते उन्हां नूं धो के भी रख देना। उसने गुस्से नाल अपने भरा वल देखिया। मेरे पति ने कहा, इन्ना हैरान होण दी गल नहीं है, तू खादा है ना तां धो के भी रख सकदी सी। वो दोने अपनी ही दुनिया विच मगन रहिंदे सन, ना ही गल करन दी उन्हां नूं तमीज सी। जदों कि मेरी ननाण अते मेरे दिओर दे मुकाबले विच मेरे पति बहुत ही चंगे नाल गल करदे सन। मैनू तां कदे कदे लगदा है कि मेरे पति दी माँ ने उन्हां नूं जरूर कितों गोद लिया होवेगा, जां फिर मेरे दिओर ते ननाण नूं अपने आप ही सोच के अपनी ही सोच उत्ते हस पैंदी। शाम नूं मेरे पति अपनी ड्यूटी उत्ते चले गए तां मैं हाल विच आके बैठ गई सी। मेरी ननाण किचन विच सी क्योंकि मेरे पति ने मेरी ननाण नूं सख्ती नाल मना किया सी कि मैनू घर दा कोई काम नहीं करन देना। अपने भरा दी गल मनदे होए वो अज किचन विच खाना बना रही सी। कुछ ही देर बाद दरवाजे ते दस्तक हुई। कौन है? मैं दरवाजे कोल जांदे होए पुछया। भाभी मैं, मेरे दिओर ने कहा तां मैं दरवाजा खोल दिता। फिर मेरा दिओर घर विच दाखल होया ते सीधा मेरी ननाण दे कमरे विच चला गया। पर जदों मेरी ननाण नूं कमरे विच ना पाया तां आवाज़ां देण लगा। फिर मेरी ननाण ने किचन तो आवाज़ दिती तां वो किचन विच चला गया। दोने आपस विच हौली हौली कुछ गल्लां कर रहे सन। मैं हाल विच पए सोफे उत्ते बैठी सी। मैनू उन्हां दीआं आवाज़ां ठीक तरह सुनाई नहीं दे रही सी। फिर अचानक मेरे दिओर दा फोन वज्जण लग्या तां उसने सीडी मेरी ननाण नूं दिती अते फोन करन नाल लगे घर तो बाहर निकल गया। मेरी ननाण ने खाना पकाउंदे होए वो सीडी किचन विच रख दिती। मैं किचन दे बाहर रखी टंकी तो पानी ले रही सी, पर मेरी नज़र इन्हां दोनां उत्ते सी। मैं किचन विच आ गई। मेरी ननाण सब्जियां कट रही सी। मैं उस नाल गल्लां करन लगी। वो मूँह बनाए कुछ गल्लां दा जवाब दिंदी अते कुछ नूं इग्नोर कर दिंदी। मैं उस दियां नज़रां तो बच के वो सीडी अपने पल्लू विच लुका लई। मैं किचन तो बाहर निकलण लगी सी कि वो सीडी मेरे पल्लू चों निकल के जमीन ते डिग गई। मेरी ननाण ने झटपट मैनू वेख्या। मैं अणजाण बनदे होए पुछया, ये सीडी कित्थों आई? अते वो सीडी चुकी ताकि मेरी ननाण नूं मेरे ते शक ना होए कि मैं उस उत्ते अते अपने दिओर उत्ते नज़र रख रही हाँ। ये मेरी है, मैनू दिओ। मेरी ननाण झट तो मेरे हत्थों वो सीडी खो लई अते जल्दी नाल सीडी लैंदे होए अपने कमरे विच चली गई। सब ने खाना खा लिया तां मेरी ननाण अते दिओर ने हमेशा की तरह अपने कमरे विच कोई फिल्म लगा लई सी अते दरवाजे नूं कुंडी ला लई। मैं बोर हुंदे होए अपने कमरे विच चक्कर कट रही सी। फिर अपने घर ते फोन मिला के गल्लां करन लगी अते फिर पता ही नहीं लगा कि कदों अख लग गई। अगले दिन मैं सवेरे उठ के हमेशा की तरह अपने कम्मां विच व्यस्त हो गई।
फिर कम पूरा करके कमरे विच आई तां मेरे पति ने कहा, जदों तक मेरा हथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने पेके चली जावां ताकि मैनू आराम मिल सके अते हथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार होई अते बैग विच कुछ कपड़े रख लए अते अपने पति नाल अपने पेके चली गई। मैं सवेरे उठी तां मेरे पति दी कॉल आ गई। थोड़ी देर उन्हां नाल गल कीती, वो थके हुए सन, सो गए। माँ ने मैनू नाश्ते लई सद लिया। मैं नाश्ते लई हाल विच आ गई सी। माँ टेबल उत्ते नाश्ता लगा रही सी। फिर असीं सारिਆਂ ने इकट्ठा नाश्ता किया। मैं हौली हौली भांडे समेटण लगी। मेरी भैन ने कहा, ओए दीदी बैठे रहो, ये काम तां मैं कर लवांगी। मैं कहा, उत्थे भी तां करदी हां ना, इत्थे भी कर लवांगी। मेरी भैन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आराम लई आई हो तां आराम करो, वरना जीजा जी की कहणगे। मेरी सस अते साली ने मेरी पत्नी नूं आराम भी नहीं करन दिता अते मेरे हत्थों भांडे लैके किचन विच चली गई। मैं हुणे इंज ही बैठी हुई सी कि अचानक दरवाजे उत्ते दस्तक हुई। मैं पुछया तद पता लग्या कि मेरी दोस्त सी जो साडे ही पिंड विच रहिंदी है। उसनूं मेरे आउण दी खबर मिल गई सी अते वो मैनूं मिलण आ गई। मेरी दोस्त ने गले मिलते हुए मैनूं पुछया, किवें हो? मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तू सुना? मैं मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हाँ। मैं उसनूं हाल विच रखे सोफे उत्ते बैठण लई कहा तां वो बैठ गई। फिर मैं भी उसदे नाल बैठ गई। मेरी दोस्त ने मूँह बनाते हुए कहा, तू तां भुल ही गई। मैं कहा, बस यार, विआह तो बाद इंसान घर दीआं जिम्मेवारियां विच बन्निया जाता है। वो हसदे हुए बोली, जीजे जी ने पेके रहण लई किवें भेज दिता? किचन तो निकलते हुए माँ बोली, वो तो इसका हथ मच गया सी ना, इसलिए आराम करन लई आई है, वरना हुण इसनूं अपनी माँ की याद कित्थे आउणी सी। मैं माँ नूं गल लगाउंदे हुए कहा, मेरी प्यारी माँ हुण बस कर। माँ ने हसदे हुए कहा, तुसीं दोने बैठ के गल्लां करो अते अपने आप दोबारा किचन विच चली गई। फिर मैं ते मेरी दोस्त असीं दोने पुराणियां गल्लां विच गुल हो गई। मेरी दोस्त ने कहा, तैनूं याद है एक पिंकी आंटी साडे पिंड विच रहिंदी सी, उन्हां ने अपने पति दे मरण तो बाद मास्टर चाचा नाल विआह कर लिया सी। मैं कहा, हाँ मैनूं याद है, पर क्यों, की होया? दोस्त ने दसना शुरू किया कि पिंकी आंटी ने जदों मास्टर चाचा नाल विआह कीता सी तां उस टाइम पहलां मास्टर चाचा दा एक पुत्तर सी, जिस बारे हमेशा पिंड विच सुणदे रहिंदे सी कि किसे ना किसे नाल लड़ाई हो गई है। मैं कहा, हाँ ये सब गल्लां तां मैनूं याद है। मैनूं तां शुरू तो ही मास्टर चाचा दा पुत्तर खतरनाक लगदा सी। मेरी दोस्त ने कहा, तैनूं पता है हुणे कुछ दिन पहलां की होया? एक दिन पिंकी आंटी उस मुंडे दे कमरे विच चली गई तां उन्हां ने देखिया कि वो अपने कमरे विच बैठा मोबाइल ते लड़कियां दियां फोटोआं देख रहा सी। उस मुंडे नूं जिवें ही पता लग्या कि पिंकी आंटी ने उसनूं वेख लिया है तां वो उन्हां तो डरन दी बजाय पिंकी आंटी नूं ही धमकियां देण लगा कि उन्हां ने जेकर किसी नूं भी यह गल दसी तां उन्हां दे नाल चंगा नहीं करेगा। पर फिर भी पिंकी आंटी ने मास्टर चाचा नूं दस दिता। उन्हां ने अपने बेटे नूं बहुत मारिया अते वो मुंडा गुस्से विच घर छड्ड गया। एक दिन पिंकी आंटी किसी काम तो घरों बाहर गई सी। उसदे पहले पति तो जो उन्हां दी धी सी, उस मुंडे ने उसनूं फड़ के उस नाल जबरदस्ती कर दिती। उन्हां दी धी उसे समय तो पागल जिही हो गई है अते वो मुंडा उदों तो फरार है। बेचारी पिंकी आंटी बहुत रोंदी है। मैं तो ये सुन के हैरान रह गई। मैं अपनी दोस्त नूं कहा, मैनूं ये सब सुन के बहुत अफसोस हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, पर मेरे दिमाग तो ये सब गल्लां नहीं निकल रही सन। फिर मैं अपने दोस्त नाल पिंकी आंटी दे घर चली गई। मैनूं उन्हां नूं देख के बहुत दुख हो रहा सी। जवान धी दा पागल होना उन्हां लई बहुत वड्डी दुख दी गल सी। मैं उन्हां नूं कुछ दिन पहलां ही देखिया सी। वो इस वक्त की तो की हो गई सी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन पेके रुकण तो बाद मेरे पति मैनूं लैण आ गए अते मैं उन्हां नाल घर आ गई। मेरा हथ भी हुण बिल्कुल ठीक हो चुकिया सी। मेरे पति मैनूं छड्ड के नाइट ड्यूटी ते चले गए। मैनूं पानी की प्यास लगी तां किचन विच रखे फ्रिज चों पानी लैण चली गई,
पानी की बोतल अते गिलास लई अपने कमरे विच आ रही सी कि क्योंकि किचन अते मेरे कमरे विचाले मेरी ननाण का कमरा सी। मैनू कमरे विचों कुछ आवाज़ां आ रही सुनाई दित्तियां, पर आवाज़ इन्नी धीमी सी कि मैं ठीक तरह सुन नहीं पा रही सी। मैं दरवाजे उत्ते कंन लगाउंदे होए सुनन की कोशिश की तां मैं हैरान रह गई। मैनू अजिहा लग्या कि टीवी विच किसी रोंदी हुई कुड़ी दी पक्की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ होर सुनन की कोशिश कर रही सी। इस तो पहला मेरे हाथ चों गिलास डिग पिया। मैं गिलास उठा ही रही सी कि मेरे दिओर ने दरवाजा खोलिया अते गुस्से नाल पुछया, इत्थे की कर रही है? मैं जल्दी नाल कहा, पानी लैण आई सी, अपने कमरे विच ही जा रही सी कि गिलास डिग पिया। मैं कमरे विच झाती मारी तां मेरी ननाण बिस्तर उत्ते बैठी सी, जिसनूं देख के लग रहा सी कि वो मैनूं देख के घबरा गई होवे। उस कमरे तो अजीब आवाज़ां आ रही सी। मेरी ननाण ने मैनूं देख के झटपट टीवी बंद कर दिता। हुण खड़ी क्यों है? जाओ अपने कमरे विच, मेरे दिओर ने कहंदे होए मेरे मूँह ते ही दरवाजा बंद कर दिता। अजीब बदतमीज़ है। मैं मूँह विच बड़बड़ाउंदे होए अपने कमरे विच आ गई। बैठी ही सी कि मेरे पति की काल आ गई। कुछ देर उन्हां नाल गल करन तो बाद मैं भी सौण लई लेट गई। वार वार मेरे दिमाग विच अपने दोस्त की गल घूम रही सी कि सच विच अजिहा हो सकता है कि मेरी ननाण अते दिओर भी कोई गंदी फोटो या वीडियो देखते होण, तां ही मैनू नहीं आउण दिंदे। वरना अजिही किहड़ी फिल्म हो सकती है जिसनूं सब तो छुपा के देखा जाए? पर यह तां कितना वड्डा पाप है ना। पर की सच विच अजिहा ही है जां यह सब मेरा वहम है? पर रब करे अजिही कोई गल ना होवे। इन्हां दोनों की आदत ही अजिही होवे सब तो वख रहण दी, तां ही वो दोने मेरे नाल ज़्यादा घुलदे मिलदे नहीं अते इसलिए वो मैनू अपने नाल फिल्म नहीं दिखाउंदे। पर हुण मेरे दिल विच बहुत सवाल बैठ गए सन अते मैनू समझ नहीं आ रहा है कि की करां। ये सब गल्लां सोचदे सोचदे मेरा सिर दर्द करन लगा सी। मैं दवाई लैके सो गई। सवेरे उठी तां हमेशा की तरह अपने समय ते मेरे पति नाइट ड्यूटी तो आके सो गए सन। उन्हां दे ड्यूटी तो आउण ते मेरी अख भी नहीं खुली सी। मैं अपने पति नूं चादर उड़ा दित्ती अते इशनान करन लई चली गई। नहा धो के तैयार हो गई अते नाश्ता बनाउण लई किचन विच आ गई। नाश्ता बनाया तद तक मेरे पति भी उठ गए सन। मैं नाल ही दोनां लई नाश्ता बनाया अते ट्रे विच रख कमरे विच आ गई। मैं अते मेरे पति नाश्ता कर रहे सन, पर मैं हुण तक इन्हां गल्लां विच ही उलझी हुई सी। मेरे पति ने पुछया, कित्थे गवाच गई हो? तां मैं सोचा उन्हां नूं सारी गल दस देवां, पर यह सब मेरा वहम होया। तां मेरे पति मेरे बारे की सोचणगे कि मैं उन्हां दे भैण भरा बारे किन्ना गलत सोच रही हाँ। मैनू पहलां सब कुछ पता करना होवेगा, फिर ही किसी नूं कुछ कहांगी। मैं दिल विच सोचा अते कुछ नहीं कह के नाश्ता करन लगी। अगली रात मैं उन्हां दे आउण तो पहलां ही उन्हां दे कमरे विच छुप के बैठ गई, क्योंकि हुण मैनू सारी सच्चाई जाननी सी। कुछ ही देर बाद मेरा दिओर अते ननाण कमरे विच दाखल होए अते हमेशा की तरह उन्हां ने दरवाजे ते कुंडी लगा लई। मैं खामोशी नाल बैठी हुई सी। मेरे दिओर ने अपनी जेब चों एक सीडी कड्ढी अते लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतजार कर रही सी कि यह सब सच है या सिर्फ मेरा वहम, अज पता लग जाएगा। पर जिवें ही उन्होंने फिल्म चलाई, मैं देख के अपनी ही सोच उत्ते शर्म नाल पानी पानी हो गई। वो फिल्म तो कोई फिल्म नहीं सी, सगों किसी जगह की रिकॉर्डिंग सी। देखण तो पता लग रहा सी कि कोई छोटा जिहा कमरा है जिस विच एक दरवाजा अते एक खिड़की नज़र आ रही सी। उस विच बहुत सारे बच्चे सन, जिन्हां सब दी उम्र 5-6 साल तो 16 साल तक दी सी। उस विच मुंडे ते कुड़ियां दोने सन अते वो एक कमरे विच पए होए सन। इन्हां नूं वेखण तो ही पता लग रहा सी कि जिवें उन्हां नूं बहुत दिनां तो फड़ के इत्थे रखिया होया है। इन्हां विचों एक कुड़ी बहुत ज़्यादा रो रही सी अते नाल ही कह रही सी कि उसकी माँ बीमार है अते वो मेरा इंतजार कर रही होवेगी। वो कुड़ी लगभग 16 साल दी सी। उसकी आवाज़ मैं पहचान गई सी। जिस दिन मैं कमरे के बाहर तो आवाज़ा सुनी सी, वो इसे कुड़ी दी सी। मैं तो ये सब देख के हैरान रह गई। मेरा दिओर अते मेरी ननाण
ਇੰਨੇ ਘਟੀਆ ਸਨ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸੌ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਕੇ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਅਤੇ ਦਿਓਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਈਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਪਾਈਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ।